Namaskaram students, and let us start with the balance perquisites. Only two perquisites are left from the whole list of the 19 perquisite, and one is leave travel concession. I don't want to spend more time here because theoretically this perquisite is too big, but practically it comes as in small adjustment. So what is leave travel concession? Leave travel concession is the concept invented for balancing personal life and business life. Okay, many dedicated employees, they work very hard for the organization. They work hard to the extent where they don't spend any time with their family, and obviously their personal life get disturbed nowadays because mother and father both are working professionals. They spend hardly few days in a year with their children, and that's an issue. So how do you take care of this? So government ne bola, let us have a concept of compulsory vacation where employee will travel somewhere in India, not outside India. Employee will travel somewhere in India, and the tickets for travel will be given by the employer. Employer will fund the travel cost, not the stay and adventure cost. वहां पे जाके आप कुछ भी अगर stay करते हो, food खाते हो, if you play any adventure sport, that is not funded under LTC. Here, the word is very much clear, only travel exemption. We are talking about travel. Whatever is your travel cost. Okay, so tomorrow if you decide to go to Goa, so from your place to Goa, whatever is the travel cost, that will be given by the company, not only for the employee, but for the whole family of the employee. Because we want employee to spend few days with his family and develop or maintain that personal life and business life relationship and balance होना चाहिए दोनों जगह पे. So that's an purpose. ज़्यादा deep में जाके बात करूंगा तो it will take a lot of time. I don't want to waste more time here because we are having target to finish this whole chapter today. So how do we compute exemption? So till now, whatever perquisites I had taught to you, I was always talking about taxable value of perquisite. This is the first perquisite where we will be determining exempt value of the perquisite. Section 10 clause 5. So we are not computing taxable value. First, clear your mind. We are computing exempt value. Then from value provided by the employer, and then we will subtract the value which is exempted. जो excess आएगा उतना, that only that much will be taxable. But here we are computing exempt component or exempt amount of the perquisite. This is happening for the first time in the whole perquisite discussion. So how do we compute exemption? Section 10(5) says amount received from employer. So your employer give you 1 lakh rupees. Amount spent by employee spent 80,000 rupees. So 1 lakh was given by the employer, 80,000 was spent by the employee. An income tax limit, and according to income tax limit, amount comes 60,000. So if this is 1 lakh, this is 80,000, this is 60,000, whichever is lower. So 60,000 will be your exemption. Now what we have to learn is not first two numbers, because first two numbers will be given as a factual data in your question. What we are supposed to learn is the income tax limit. Now, how do we learn income tax limit, and based on what it depends? So if you have performed journey by air, believe me, my dear friend, if this LTC is given, it's not given to the labor class or middle class employee. It is given to the top-notch organizational employee. So whoever is the director of the organization, project in charge, so top people, they earn this. Obviously, these people will not travel by train. Obviously, sometimes they may, but obviously they may not travel by the train because their time is crucial. So they may prefer the air transportation. Now, when we transport by air, there are two classes, if you know, business class ticket and economy class ticket. You might have traveled by business class. That is the ticket given by your employer to you. आप अपनी फैमिली को लेके बिजनेस क्लास से जा सकते हो, which is almost a double ticket. बिजनेस क्लास का और इकोनॉमी क्लास का टिकट जो होता है वो ऑलमोस्ट डबल होता है. And therefore, what we say, we will not provide you exemption of your actual fare. We will provide you the exemption of airfare. Okay, of which class, sir? Of economy class. Now, if I have to travel to Kochi, Kochi locates in Kerala, and right now if I'm in Mumbai, from Mumbai we are having direct flight to the Kochi.
Okay, that is one thing, one route. And from Mumbai, we are having a flight which goes to the Bengaluru, and from Bengaluru, it goes to Kochi. This is another flight. So even if you have traveled by this flight, okay, I don't know for what reason, but if you have traveled by this flight, a flight which is indirect flight, we will not consider this route. We will consider only a shortest route. Shortest route means, because shortest route is the cheapest route. This is the by default assumption in our air transportation. Whenever you start booking ticket, you will realize this, that shortest route is always the cheapest one, because the longest route takes little extra cost, 5,000. If it is the shortest route and 5,000 is the ticket cost, for the longest route it may be 8,000 rupees, 9,000 rupees, 12,000 rupees. Some weird cost will be shown to you. So what government is saying, we are not asking you to travel by shortest route. You can travel by whatever route you want, but we will provide you the maximum exemption of the shortest route. बोलो पहला वाला पॉइंट क्लियर है? इफ यू परफॉर्म जर्नी बाय एयर, गवर्नमेंट बोलता है एग्जामिशन मिलेगा आपको इकोनॉमी क्लास के फेयर का। मुंबई टू कोची अगर आपने ट्रैवल किया है तो मुंबई टू कोचीन का जो इकोनॉमी क्लास का टिकट होता है डायरेक्ट फ्लाइट का, उतना हम एग्जामिशन देंगे। एम आई क्लियर विद दिस? हाँ सर। ठीक है, अगर आपने जर्नी एयर से परफॉर्म नहीं किया है, यू हैव परफॉर्म बाय एनी अदर मोड। एनी अदर मोड में क्या क्या आता है? कैन यू प्लीज लिस्ट आउट एनी अदर मोड? एयर छोड़ के और कैसे हम पिकनिक पे जा सकते हैं? प्लीज टेल मी। रेलवेज और रोडवेज। रेलवे, ओके, रोडवे और वाटरवे। वाटरवे से भी जा सकते हैं, वेरी गुड। और ट्रेकिंग पे जाना है तो यू कैन गो बाय वॉक एज वेल, राइट? वॉक, साइकिल, any mode. See, we are not particular about the mode of transportation here. You might have traveled by any mode. Like मेरा फिर से वही example, if I have to travel to Kochi, I can also travel by vessel, right? ओशियन रूट को मैं यूज कर सकता हूँ, राइट? यहाँ से वेसल पकड़ के फ्रॉम मुंबई पोर्ट टू कोची पोर्ट, अगर कोई वेसल ट्रांसपोर्टेशन है तो आई कैन प्रेफर द वेसल ट्रांसपोर्टेशन। एम आई राइट? यहाँ से वेसल भी तो जाती होगी, तो वेसल से भी जा सकता हूँ, रोड से भी आ सकता हूँ, रेलवे से भी आ सकता हूँ, ठीक है ना? तो आई कैन रीच टू केरला कोची बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि अगर प्लेसेस कनेक्टेड होंगे रेलवे से, if these two places are connected with railway, we are not saying you traveled by railway, we are just saying these two places are connected by railway. if these two places are connected by railway, तो हमें क्या करना होता है? क्योंकि रेल फेयर का हम बेस ले सकते हैं कि ओके दिस मच मिनिमम एग्जाम्पशन वी कैन प्रोवाइड टू द एम्प्लॉय। तो if places are connected by railway, these places are connected by the railway, then exemption will be provided because they are top employees. Obviously they will travel by AC class or at least first class of rail fare of a shortest route. Shortest route का लैंग्वेज हर जगह पे है, ओके, मैंने बार बार उसको रिपीट नहीं किया। exemption will be AC क्लास और फर्स्ट क्लास ऑफ रेल फेयर। जितना रेल फेयर होता है मुंबई से कोची जाने का, उतना टिकट हम मिनिमम एग्जाम्पशन करके चलेंगे। सर लेकिन अगर प्लेसेस आर नॉट कनेक्टेड बाय रेलवे, सर इसका कोई एग्जांपल दे दो। इफ यू हैव ट्रैवल टू हिमालय एनी टाइम इन योर लाइफ, मनाली वगैरह कभी भी आप जाते हो ना, कुल्लू मनाली और एनी पार्ट ऑफ हिमालय, रेलवेज आर नॉट कनेक्टेड टू हिमालय। फॉर योर इंफॉर्मेशन, रेलवेज आपको मैक्सिमम मिलती है हरियाणा तक या दिल्ली तक, ठीक है ना? आपको या तो हरियाणा में उतरना होता है या दिल्ली में उतरना होता है, एंड हरियाणा से आपको फिर या दिल्ली से आपको टेम्पो ट्रैवलर बस होते हैं ना, आपने ऐसा देखा होगा ना, ऐसा ट्रैवलर बस, ट्रैवलर होता है ना, छोटी छोटी मिनी बस आप जैसे जिसको बोलते हो। तो टेम्पो ट्रैवलर करके आपको ऑलमोस्ट 12 घंटे का जर्नी करके यू हैव टू रीच टू हिमालय, ओके। तो क्योंकि वहां पे और कोई रास्ता ही नहीं है, देयर इज नो अदर वे, यू हैव टू गो बाय रोड, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया, टेम्पो ट्रैवलर बुक करके यू रीच टू हिमालय। अब हिमालय को, और आप मुंबई से गए हो समझो या महाराष्ट्र से गए हो, तो महाराष्ट्र से डायरेक्टली हिमालय तक तो कोई तो
यही नहीं है, रेलवे है ही नहीं है, और एयर से आपने परफॉर्म नहीं किया, आपने तो पहले रेलवे से परफॉर्म किया है, फिर आपने टेम्पो ट्रैवलर से परफॉर्म किया है, फिर आपने ट्रेकिंग किया है, वॉट एवर वेज यू हैव यूज। तो अभी कैसे निकालेंगे? तो हमने पूछा क्या दिल्ली से, आपने तो प्राइवेट बस किया था यहाँ से, बिकॉज यू हैड अ वेरी बिग फैमिली और आपका फ्रेंड्स का ग्रुप बहुत बड़ा था, तो यू बुक द प्राइवेट ट्रैवलर। लेकिन आपको नहीं लग रहा दिल्ली से हिमालय जाने के लिए, मनाली के लिए गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्टेशन भी होगा? हम जैसे महाराष्ट्र में हमारा एसटी है, शिवनेरी वगैरह ऐसा है ना बहुत कुछ, हाँ तो वैसे हिमालय में जाने के लिए भी तो होगा ना, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर रेलवे से कनेक्टेड नहीं तो रेलवे का तो एग्जाम्पल नहीं ले सकते, लेकिन रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है क्या वहां पे? रिकॉग्नाइज मतलब वही अपना स्टेट गवर्नमेंट वगैरह का जो रहता है, लोकल अथॉरिटीज का। तो यस, अगर सर महाराष्ट्र मतलब वहां दिल्ली से लेके हिमालय तक रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाता है, हिमाचल प्रदेश की व्हीकल जाती है, तो फिर हम बोलेंगे ठीक है, वहां का जो डिलक्स क्लास होता है, जैसे महाराष्ट्र का डिलक्स क्लास मतलब आई गेस शिवशाही, शिवशाही करके जो बस होती है, आई गेस वो बहुत कंफर्टेबल बस होती है क्या? आई एम नॉट दैट गुड इन यस दिस। जैसे नीता वोल्वोस की बसेस होती है ना, मर्सिडीज बसेस होती है, वेरी मच कंफर्टेबल। तो हम बोलते हैं वो वाला क्लास आप लो, ठीक है ना? तो फेयर ऑफ अ डिलक्स क्लास, जो टॉप क्लास होता है बसेस में, उसका आप फेयर ले लो एज अ बेसिस, उतना हम आपको एग्जाम्पशन देंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, वी आर नॉट सेइंग यू हैव ट्रैवल्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट, ओनली रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट। सर मैं तो ऐसी जगह पे गया था, समझो आप फॉरेस्ट एक्सप्लोरेशन पर गए थे कहीं पे, और आप फॉरेस्ट एक्सप्लोरेशन के लिए जब जाते हो तो फॉरेस्ट में ना ही सर रेलवे जाती है, ना ही रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन है, ना ही एयरवे है। वी जस्ट वेंट बाय आवर प्राइवेट कार, और प्राइवेट कार से जाने के बाद सर वहां पे हमने प्राइवेट कार रख दिया, और फिर जो फॉरेस्ट का जो गाड़ी होता है वो गाड़ी में बैठ के हमने फॉरेस्ट एक्सप्लोरेशन किया और फिर रिटर्न आ गए। सर अगर आपने ऐसा कुछ किया जहां पे ना रेलवे है, ना रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना एयरवे है, तो वी आर हेल्पलेस टू गिव यू बेसिस ऑफ एग्जाम्पशन। तो हमने बोला कि फिर आप ना सर हमें एक ओवरऑल डिस्टेंस बता दो, हाउ मेनी किलोमीटर्स यू हैव ट्रैवल्ड। से फॉर एग्जांपल यू हैव ट्रैवल्ड फॉर 93 किलोमीटर, तो अप्रोक्सीमेटली आपने कुछ 500 किलोमीटर का जर्नी किया हुआ है। और आप फिर रेलवे में आप क्या करो, रेलवे में ऐसा एक डेस्टिनेशन ढूंढो कि अगर आप 500 किलोमीटर अगर रेलवे से ट्रैवल करते, यू हैव नॉट ट्रैवल्ड बाय रेलवे, लेकिन अगर करते, अगर ये दो प्लेसेस अगर रेलवे से कनेक्टेड होते, तो रेलवे का फेयर कितना होता फॉर अ सिमिलर डिस्टेंस। अब आप बोलोगे सर ऊपर आपने हेडिंग लिखा हुआ है कि दिस प्लेसेस आर नॉट कनेक्टेड बाय रेलवे, और आप यहाँ पे रेल फेयर निकाल रहे हो। राजा, दिस इज नॉट एक्चुअल रेल फेयर, दिस इज अ डीम्ड रेल फेयर। अगर आप 500 किलोमीटर तक का जर्नी इफ यू परफॉर्म बाय रेल, तो जितना फेयर होता आपका एसी क्लास और फर्स्ट क्लास का, उतना हम आपको एग्जाम्पशन देंगे। बोलो, पहले तो ये टेबल क्लियर हो गया, चार्ट क्लियर हो गया, मैंने क्या क्या बोला वो? हाँ यस हाँ, तो मैंने क्या बोला आपको सर, एग्जाम्पशन कैसे निकालता है, इनकम टैक्स एग्जाम्पशन कैसे निकालता है? अगर आपने एयर से जर्नी परफॉर्म किया होगा तो मैंने बोला एग्जाम्पशन इज इक्वल टू इकोनॉमी फेयर, इकोनॉमी फेयर ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है ना? फिर मैंने बोला यार आपने कोई अदर मोड से ट्रैवल किया हुआ है, अदर मोड से ट्रैवल किया तो हमने क्या देखा फिर, whether places are connected by railway, places are connected by railway। तो मैंने बोला अगर places are connected by railway तो आपको एग्जाम्पशन लेना है, एग्जाम्पशन इज इक्वल टू रेल फेयर, जो भी आपका रेल फेयर था, ठीक है ना, रेल फेयर जितना भी होता है आपका अच्छे क्लास का, उतना आपका एग्जाम्पशन हो जाएगा। चलो ठीक है सर, प्लेसेस आर नॉट कनेक्टेड बाय रेलवे, प्लेसेस आर नॉट कनेक्टेड बाय रेलवे, तो मैंने बोला फिर यार रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो होगा, रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है क्या? तो आपने बोला हाँ सर ये एग्जिस्ट करता है। फिर मैंने बोला एग्जिस्ट करता है तो बहुत अच्छी बात, अगर आपने रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर डिलक्स क्लास से अगर आपने डिलक्स क्लास से अगर आपने ट्रैवल किया होता तो कितना टिकट होता, उतना हम एग्जाम्पशन आपको दे देंगे। फिर मैंने आपको बोला यार कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, इवन रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या करेंगे? तो मैंने बोला कि ये डिस्टेंस जो है वो मेजर कर लो आप लोग, और जो डिस्टेंस आप लोगों ने मेजर करके रखा हुआ है, अगर इतना डिस्टेंस आप अगर रेलवे से करते तो एग्जाम्पशन इज इक्वल टू जो इकोनॉमिक अपना रेल फेयर है, रेल फेयर ऑफ फर्स्ट क्लास और एसी क्लास, उतना आपको एग्जाम्पशन मिलेगा फॉर अ सिमिलर डिस्टेंस। एग्जैक्ट डिस्टेंस होना जरूरी नहीं है, बस इतना डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। सर जर्नी हैज टू बी परफॉर्म इन इंडिया, अगर आप आउटसाइड इंडिया जाते हो, श्रीलंका या हांगकांग या नेपाल, भूटान, अगर आप ऐसे कंट्रीज में जाते हो तो आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। दिस इज एन इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारतम।
आप भारत को देखो, आपको बाहर जाओगे तो इनकम टैक्स आपको एग्जम्पशन नहीं देगा। आपका एम्प्लॉयर आपको टिकट दे सकता है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट, हम आपको एग्जम्पशन नहीं दे पाएंगे। सर ये क्या अनलिमिटेड मतलब ट्रैवल करना होता है, साल में 4-4 पिकनिक करेंगे चलेगा क्या? नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हो तो 4 कैलेंडर ईयर में 2 जर्नी ही आप परफॉर्म कर सकते हो। 4 कैलेंडर ईयर में 2 ही जर्नी परफॉर्म कर सकते हो, जिसके लिए आपको एग्जम्पशन मिलता है। आपको मैं कॉन्सेप्ट भी दिखा देता हूँ इसमें, इधर तो आपके बुक में रहेगा ये। ये देखो, और एक्स्ट्रा नोट्स में आपको मॉड्यूल में से पढ़ा रहा हूँ। जर्नी में भी परफॉर्म ड्यूरिंग द सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट, एम्प्लॉयर में भी प्रेजेंट और द फॉर्मर, journey must be performed to any place within the India. In case journey was performed to various places together, then the exemption is limited to the extent cost of the journey from place of origin to the farthest point. Farthest point मतलब जो longest, आपने अलग, जैसे मैंने हिमालय का आपको एग्जांपल दिया था, तो मुंबई से लेके हिमालय तक काउंट होगा, दिल्ली तक काउंट नहीं होगा अगर आपने अलग अलग जगह पे ट्रैवल किया था। एम्प्लॉय मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, स्टे कॉस्ट इज नॉट एग्जम्प्टेड। मैंने आपको खाली ट्रैवल कॉस्ट का एग्जम्पशन बता दिया। ये टेबल मैंने आपको पढ़ा दिया, मुझको खाली वो 4 कैलेंडर ईयर का आपको लॉजिक बताना है। आपका एकेडमिक ईयर 21-21 के लिए ब्लॉक जो चलता है वो चलता है जैन 2018 से दिसंबर 2020 तक। ये जो ना ये स्टैंडर्ड ब्लॉक है, इस ब्लॉक में ना आप मैक्सिमम 2 जर्नी परफॉर्म कर सकते हो। और अगर आपने दो जर्नी नहीं परफॉर्म की होगी तो 2 के 2 आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते नेक्स्ट 4 ईयर की साइकिल के लिए। 2 में का 1 आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और जो भी आप कैरी फॉरवर्ड करोगे ना उसमें का आपको फर्स्ट ईयर में ही आपको लेना पड़ेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये जो 4 ईयर का जो साइकिल है ना, इसमें अगर आपने एक भी जर्नी परफॉर्म नहीं किया तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो खाली 1, लेकिन उस 1 को नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट ईयर में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट 4 ईयर में और 2 जर्नी आने वाली है। तो उन्होंने क्या बोला देखो, वेयर कंसेशन इज नॉट अवेल ड्यूरिंग द प्रेसीडिंग ब्लॉक वेदर वन और बोथ, then on any one, ठीक है ना, any one journey performed in the first calendar year, तो first calendar year, यहाँ पे जो first calendar year आएगा, immediately in succeeding block will be additionally exempt, not the 2 journey, ठीक है ना। तो 2 journey का नहीं, वो 2 journey तो अलग से मिलेंगी आपको, एडिशनल एक जर्नी आपको मिलेगा, लेकिन खाली फर्स्ट ईयर में ही मिलेगा। तो ये ऐसा उन्होंने यहाँ पे बात किया हुआ है। चलो मुझे बताओ, पिकनिक पे किसको किसको लेके जाना चाहोगे आप लोग? आप एम्प्लॉय हो, टिकट आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, तो आप पिकनिक पे किसको किसको लेके जाओगे? हु विल बी द पैसेंजर? जल्दी बोलो, कौन कौन जाना चाहिए पिकनिक पे? पहले तो एम्प्लॉय खुद जाना चाहिए, ठीक है ना, फिर और कौन जाएगा उसके साथ? गेस करो जल्दी जल्दी बोलो, एम्प्लॉय के साथ और कौन जाएगा? सीनियर एम्प्लॉय, स्पाउस जाएगी, वेरी गुड, और चिल्ड्रन जाएंगे। कितने मैक्सिमम कितने जाएंगे? जितने होंगे उतने। देखो मैंने आपको लास्ट में क्या पढ़ाया था, लास्ट में हॉस्पिटल की जब मैंने बात की थी तो मैंने आपको क्या बोला कि भैया यहाँ पे जितने होंगे उतनों को हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। पिकनिक पे जितने होंगे उतने को लेके जाने की जरूरत नहीं है ना, कुछ घर पे भी तो रुक ही सकते हैं, राइट? हाँ। तो मैक्सिमम कितने? हाँ, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन लेके जा सकते हो। लेकिन इसका यहाँ पे एक अजीब सा एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन में आपको पढ़ाऊंगा, ये एक्सेप्शन यहीं पे है, वो बोलता हूं मैं। उसके अलावा कौन कौन जा सकता है? डिपेंडेंट लोगों में, ठीक है ना, डिपेंडेंट लोगों में डिपेंडेंट पेरेंट जा सकते हैं, डिपेंडेंट और बोलो ना, सिस्टर ब्रदर। हाँ, डिपेंडेंट ब्रदर, डिपेंडेंट सिस्टर। तो डिपेंडेंट पेरेंट, डिपेंडेंट ब्रदर, डिपेंडेंट सिस्टर। वैसे तो मैं एडवाइस करता हूँ कि इन लोगों को लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग अगर पिकनिक पे लेके जाओगे ना तो वहां पे पिकनिक पे भी आपको महाभारत देखने का पूरा मौका मिलेगा। ये लोग हमेशा झगड़े करते रहते, पता नहीं क्यों, ये खुश रह ही नहीं पाते, इनकी आत्मा शांत होती ही नहीं है। तो आपको अगर पीसफुल टाइम स्पेंड करना है तो यू शुड ट्रैवल अलोन मतलब जो सोलो ट्रैवल होता है वो ट्रैवल, दैट इज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल। बट यस, बिकॉज दिस इज फंडेड बाय द एम्प्लॉयर, यू कैन कैरी योर स्पाउस एंड चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन की जब बात मैं करता हूं तो चिल्ड्रन में ना इन्होंने क्या बोला देखो, गवर्नमेंट ये मैक्सिमम 2 से इसलिए लगाता है क्योंकि पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। एक एंगल से देखोगे तो पॉपुलेशन इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम,
एंड इफ पीपल आर प्रोड्यूसिंग अनलिमिटेड यार, मतलब जस्ट लाइक दिस, आप बिलीव नहीं करोगे, लॉकडाउन में इतने बच्चे पैदा हुए, इतने बच्चे पैदा हुए, आई एम नॉट जोकिंग, बिकॉज आई डू द ऑडिट ऑफ द हॉस्पिटल। तो आई नो कि जो वार्ड है ना, जो मैटरनिटी वार्ड है हॉस्पिटल का यहाँ पे रूरल एरिया में, दैट इज ओवर फ्लडेड, मतलब बेड पे बैठने के लिए जगह नहीं है, लोगों को बेड पे भी रखा है, बेड के नीचे गद्दे डाल के इधर भी रखा हुआ है, और 2-2 दिन में डिस्चार्ज दे रहे हैं। यूजुअली हॉस्पिटल में डिलीवरी होने के बाद दे शुड कीप चिल्ड्रन फॉर एटलीस्ट 3 to 4 days फॉर बेसिक ऑब्जर्वेशन। जो थोड़ा सीरियस होता है उसको रखते हैं, जो जेन्यून मतलब नॉर्मल होता है उसको 2-2 दिन में डिस्चार्ज, ठीक है ना, सेम डे पे डिस्चार्ज दिया हुआ है, ऐसा भी है। तो सर इतना मतलब लोगों को ये है ना कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यार सर बच्चे पैदा करना तो हमारे हाथ में, हाँ हमारी कैपेसिटी तो हम पैदा करेंगे। सी, आपकी कैपेसिटी आप पैदा करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन कंट्री के ओवरऑल रिसोर्सेज जो है ना वो लिमिटेड है, एंड जब रिसोर्सेज ओवरऑल लिमिटेड होते हैं तो यू एवरीबडी हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके, आप मैक्सिमम एक बच्चा पैदा करो, ऐसे हमें बोलना चाहिए। मतलब कल अगर, डोंट बी सरप्राइज, अगर कल हमारा गवर्नमेंट 1 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च कर देता है तो एक फैमिली में एक ही बच्चा होना चाहिए, ठीक है ना, एक ही बच्चा होना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम क्या होते हैं, हम इंडियंस होते हैं, हमें ना ये एक के ऊपर भरोसा नहीं होता, इजंट इट? मतलब आप अपने आप को देख लो और सोचो ना कि आप जिसको प्रोड्यूस करोगे उसका क्या मटेरियल होगा। तो वी डोंट ट्रस्ट दैट वन प्रोडक्ट विल हैव ऑल दोज क्वालिटीज विच विल फुलफिल आवर एक्सपेक्टेशन। तो हम क्या करते हैं, इसको एज अ बैकअप हम और एक चिल्ड्रन को स्कोप देते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला यार 2 बहुत हो गए, यहाँ पे एलटीसी के एंगल से बोल रहा हूं, 2 बहुत हो गए, लेकिन अभी क्या करे, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो आपने जब सेकेंड अटेम्प्ट दिया, मैं सी अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आपको एक बच्चा हो गया, सेकेंड अटेम्प्ट में आपको ट्विंस डॉटर हो गई। अब इसमें आपकी कोई गलती है क्या, बोलो? नो, नहीं। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि एनी मल्टीपल बर्थ टेकन प्लेस आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड शैल बी कंसिडर एज 1। इसको एक मानते हैं हम। तो देखने के लिए तो घर में 3 बच्चे हैं, तो एग्जम्पशन मैक्सिमम 2 लोगों के लिए था, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं था, तो अभी तीनों के तीनों चिल्ड्रन एग्जम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इसको एक काउंट करता है और इन दोनों को एक काउंट करता है। तो टोटल आपको एग्जम्पशन इन तीनों का मिलता है, क्योंकि हम इसको मैक्सिमम 2C में कंसिडर करते हैं। बोलो, पहला ये तो क्लियर है जो मैंने बताया आपको? यस। हाँ, सर अगर वाइस वर्सा होता तो पहले अटेम्प्ट में ही ट्विंस हो जाते, तो पहले अटेम्प्ट में ही ट्विंस हो जाते तो बोलो, और बाद में डॉटर होती तो ये ऐसा काउंट किया जाएगा क्या? इन दोनों को एक काउंट किया जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं। जब आपने फर्स्ट No. अटेम्प्ट दिया और आपके घर में 2 बच्चे, आपको है पता है, आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना ही नहीं है ना। फैमिली प्लानिंग की बात वही होती है कि मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, 2C यहाँ पे अलाउ किया गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे सर ये आपको एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 2C में आप एनी 2 सिलेक्ट कर दो, इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, तो इसको हम एग्जम्पशन नहीं देंगे, इसको टैक्सेबल रखेंगे, ठीक है ना। फिर कोई तो मुझे डाउट ये भी पूछा था कि सर अगर मुझे फर्स्ट चाइल्ड हुआ और बाद में 3 बच्चे हो गए, बाप रे, या 4 हो गए, बाप रे, या 5 हो गए, बाप रे, हाँ एक टाइम पे, पहले तो चेक करो कि तुम्हारा जो डीएनए हो ह्यूमन डीएनए में आता है कि नहीं आता। शायद तुम लोग ने किसी एनिमल से शादी की होगी, पहले वो चेक कर लो, ठीक है ना। इतने डिलीवरीज अगर आप एक टाइम पे दे पाते हो तो। लेकिन फिर भी फॉर थेरोटिकल अजम्पशन कि हाँ सर वो हमारे कुछ तो, हमारा घर में कुछ तो एक फालतू सा न्यूज़पेपर आता है, देखा होगा आपने ना, कोई भी न्यूज़पेपर का एक पेज तो ऐसा होता है जिसमें ऐसा अजीब अजीब लिखा होता है, एक like there is in some lady in Washington, she gave the birth to the 6 children at a time, ऐसा कुछ तो अजीब सा आता है। तो yes, theoretically we can talk about this। मैंने नहीं बोला कि यहाँ पे ट्विंस होंगे तो ही एग्जम्पशन मिलेगा। मेरे लॉ में क्या लिखा हुआ है? मल्टीपल। और ये मल्टीपल को, मल्टीपल मतलब कितने भी हो सकते हैं ना यार, तो इन सबको एक ही माना जाएगा। एम आई क्लियर? यस। yes, हाँ, तो ये ऐसी बातें होती है यहाँ पे। तो वो मैंने बता दिया आप लोगों को कि सर ये कौन कौन जा सकता है।
तो एम्प्लॉई जा सकता है, स्पाउस जा सकती है, चिल्ड्रन जा सकते हैं, इसका एक एक्सेप्शन है। डिपेंडेंट पेरेंट, ब्रदर सिस्टर, मल्टीपल बर्थ टेकन प्लेस आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड शैल बी कंसिडर्ड एज वन। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं इसके बारे में। मिस्टर डी वेंट ऑन हॉलीडे ऑन 25 दिसंबर 2020। चलो ठीक है, डी ने हॉलीडे पे गए थे दिसंबर में टू दिल्ली। दिल्ली इंडिया में आता है ना? हाँ हाँ स्टे करने का विथ हिज वाइफ। थैंक गॉड किसी और की नहीं लेकर गया था। तो वाइफ कवर थी क्या? ये जल्दी बोलो, हाँ। वाइफ कवर थी क्या? हाँ वाइफ कवर थी, असेसी कवर था। और बच्चे कितने लेकर गए? प्राइमा फेसी तो 3 कवर्ड नहीं है ना, मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। आपके माइंड में आना चाहिए कि दो ही का एग्जम्पशन दूंगा मैं अभी। लेकिन फिर उन्होंने बच्चों का कंपोजिशन बताया आपको। 1 सन एट एज ऑफ 5 years, 5 साल का एक लड़का है, एंड ट्विन डॉटर्स एट एज ऑफ 2 years। अच्छा, तो पहले सन हुआ था और बाद में डॉटर्स हुई थी, राइट? हाँ Yes. इन डॉटर्स को एक ही काउंट करना पड़ेगा अभी हमें। हाँ हाँ. तो सारे तीनों की तीनों चिल्ड्रन एग्जम्प्ट हो जाएंगे। हाँ थैंकफुली दे वेंट बाय इकोनॉमी क्लास ओनली, फ्लाइट से गए थे, इकोनॉमी क्लास से ही गए थे। और उनका जो टोटल कॉस्ट ऑफ द टिकट रिम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर था वो 60,000 था, 45,000 फॉर द अडल्ट्स एंड 15,000 फॉर 3 माइनर चिल्ड्रन। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एलटीसी एग्जम्प्ट। आपको नहीं लग रहा फुल्ली एग्जम्प्ट है? हाँ हाँ सर, जितना भी रिसीव किया फुल्ली का फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा, इसमें कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। मैंने बोला चलो अच्छी बात है। फिर उन्होंने बोला इन अबव इलस्ट्रेशन will there be any difference if among the 3 children twins were of 5-year-old and son were 3-year-old? जो ट्विन डॉटर है वो पहले 5 साल की थी, मतलब पहले 2 डॉटर हो गई थी आपके घर में और बाद में आपने सन प्रोड्यूस किया। तो आपको नहीं लग रहा अभी इनको 3 का 3 ही काउंट करना पड़ेगा? हाँ। तो अभी इसका टैक्स अभी एग्जम्पशन जो होगा वो लिमिटेड हो जाएगा ना। 45,000 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अडल्ट का है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ये 15 में का 2 लोगों का एग्जम्प्ट होगा। कैन यू कंप्यूट फॉर 2 पीपल की कितना एग्जम्प्ट होगा? 15,000 इज फॉर 3 पीपल, तो 15 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना एग्जम्प्ट हो जाता है? 10 ना? 10,000। तो ये 10,000 और ये 45,000 ये टोटल एग्जम्प्ट हो जाएगा सर। तो ये कितना एग्जम्प्ट हो जाएगा? ये देखो, ये टोटल ना 55,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा। और जो बैलेंस है सर, बैलेंस मतलब कितना सर? जो 5,000 का बैलेंस आता है वो टैक्सेबल हो जाएगा। एम आई राइट? हाँ तो ये मैंने आपको एलटीसी बता दिया। एलटीसी में इतना कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत है नहीं, आसान सा कॉन्सेप्ट है। और आपके मॉडल ने तो सीएमए के मॉडल ने तो क्वेश्चन भी नहीं दिया इसका, किधर तो मिक्स करके दिया होगा, बड़े क्वेश्चंस में डेडिकेटेड क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट परक्यूजिट जो है मोटर कार। बहुत सारे स्टूडेंट इसको देख के डर जाते, पता नहीं क्यों, एकदम सिंपल सा परक्यूजिट है। वी विल डू इन द नेक्स्ट राउंड। अभी 3 ही मिनट बचे हुए हैं। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज प्लीज आस्क।